آج کا جو کلام ہے اس کا ٹاپک ہے بدن سے نہیں بلکہ روح سے چلو، واک بائی دا اسپرٹ رادر دین دا باڈی۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ ریسنٹلی ہم نے سنا کہ خدا کی خادمہ ایونجلسٹ جو میریلن ہکی ہیں وہ مسیح میں سو گئی ہیں۔ ان کی خدمت کے تعلق سے یہ میں چھوٹی سی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کی خادمہ کی گواہی میں سن رہی تھی آن لائن، تو انہوں نے جو اپنی زندگی کی گواہی دی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جب میری شادی ہوئی، شادی سے پہلے جہاں میری منگنی ہوئی، وہ آدمی جو تھا وہ لڑکا اسپرٹس کو ماننے والا تھا، جیسے لوگ اسپرٹس کے پیچھے چلتے ہیں، وچ کرافٹ جس کو بولتے ہیں، وہ اسپرٹ پہ بلیو کرتا تھا۔ اور جب اسے پتا چلا کہ میں بلیور ہوں اور میں ان چیزوں کو نہیں مانتی، اور میں نے اس کے اگینسٹ اس کو بتایا کہ میں ان ساری چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی، تو اس طرح سے یہ مین ایشو بنا اور ہماری علیحدگی ہو گئی۔ اور جب ختم ہو گیا تو 3 دن میں بڑی ڈپریس رہی، پریشان رہی، اور میں دعا کرتی رہی۔ خدا نے مجھے کہا اپنی فکر مجھ پر ڈال دے اور فلاں سٹی ہے وہاں جا، تو ماسٹر ڈگری کر وہاں جا کے۔ وہ ایک ٹیچر تھی، بیسیکلی وہ ایک ٹیچر تھی، تو وہاں جا کے اسٹڈی کو کنٹینیو کر، میں نے تیرے لیے انتظام کر رکھا ہے، میں تیرے لیے بیسٹ کرنے والا ہوں۔ تو وہ وہاں چلی گئی، اس نے آواز کو سنا، خدا کی آواز کو سنا، اور وہ اس یونیورسٹی میں چلی گئی۔ اور وہاں خدا نے اس کی زندگی میں ایک لڑکا بھیجا جو خدا کی طرف سے تھا، اور وہ خدا سے پیار کرنے والا تھا۔ اسی طرح ان کی آپس میں شادی ہو گئی، دونوں خدا سے پیار کرنے والے تھے۔ پھر سلسلہ ازدواجی زندگی کا شروع ہو گیا، خدا کی خدمت بھی کر رہے تھے، مضبوط تھے دونوں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں دعائیں کرتی تھی کہ خدا مجھے اولاد دے۔ پھر وہ ایک میٹنگ میں گئی، وہاں خدا کے خادم نے بائی نیم اس کو سٹیج پر بلایا کہ میریلن ہکی ہے، یہاں موجود ہے ایک بیٹی، وہ سامنے آ جائے، خدا چاہتا ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ وہ آگے چلی گئی، خدا کے خادم نے جب اس کو آگے بلایا، اس کے لیے دعا کی گئی، خدا نے اسے بلیس کیا۔ اور خدا کے خادم نے بولا آج خدا تجھے برکت دینا چاہتا ہے۔ کہتے جب میں سٹیج کے اوپر دیکھ رہی تھی تو ایسے ایک لائٹ کا پہیا سا ویل وہ گھوم رہا تھا، اور ایسے ہوا کہ وہ گھومتے گھومتے میری باڈی میں آ گیا، وہ میرے پاؤں سے اوپر چڑھا اور ایسے میری باڈی میں گھس گیا۔ تو مجھے اسی وقت اپنے اندر ایک چینج محسوس ہوا۔ اس دن کے بعد میں نے دعا کرنا شروع کر دی، مضبوط ہو گئی، اور خدا میں کہ خدا کا بیسٹ پلان ہے میرے لیے، خدا مجھے خدمت کے لیے بھی کھڑا کر رہا ہے، استعمال بھی کر رہا ہے، اور اس نے مجھے برکت بھی دے دی ہے۔ تو کہتی جب میری باڈی میں کچھ چینجز آنے لگی اور مجھے لگا کہ جیسے میں ہیلدی ہو رہی ہوں، لیکن مجھے کچھ فیل ایسا نہیں ہو رہا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گئی کہ شاید میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، میں نے کنسیو کر لیا۔ میں دعا کر رہی تھی، میری برکت خدا نے مجھے دے دیا، لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ نیگیٹو تھی۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ کو بیبی کی بلیسنگ نہیں ملی، ابھی آپ پریگننٹ نہیں ہیں۔ کہتے پھر ہم نے گھر آ کے پریشان رہے، کچھ دن بعد پھر ہم نے دعا میں رکھا اس چیز کو، اور میرے ہسبینڈ نے کہا سیکنڈ اوپینین بھی لے لینی چاہیے، خدا کہتا ہے روح سے بھی چلو، عقل سے بھی، ہمیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جانا چاہیے۔ جب ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے اور انہوں نے جب میرا ٹیسٹ کیا تو خداوند کے نام کو عزت اور جلال ہے، وہ پازیٹیو رپورٹ اس کی آئی، اور انہوں نے بولا کہ آپ تو 5.5 مہینے کی پریگنینسی ہے آپ کی باڈی میں، اور آپ پریگننٹ ہیں۔ وہ کہتے میں بہت خوش ہوئی، اور خدا نے مجھے سارا بیٹی دی، مجھے سیف رکھا پریگنینسی میں، اور اس کی بیٹی پیدا ہوئی۔ اور یہ اس کی ازدواجی زندگی۔ اب روحانی زندگی کی جو اس کی گواہی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میں میپ رکھ لیتی تھی دنیا کا اپنے سامنے، اور ملکوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کیا کرتی تھی، ملکوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرتی تھی۔ اور وہ یہ نہیں کہ مجھے اس ملک کے لیے خدا ابھار رہا ہے تو میں فوراً سے چلی جاؤں وہاں پر اور میں جا کے وہاں خدمت شروع کر دوں۔ وہ کہتی میں خدا کے وقت کا انتظار کرتی تھی۔ میں جب ہاتھ رکھ کے دعا کرتی تھی تو پاکستان پہ آ کے میرا ہاتھ رک جاتا تھا، جہاں پاکستان نام لکھا ہوتا تھا، پاکستان کا جہاں سے نقشہ شروع ہوتا تھا، ادھر آ کے میرا ہاتھ رک جاتا تھا، اور باقی ملکوں سے زیادہ میں اس ملک کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرتی تھی۔ اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا اس ملک کے لیے کیوں مجھے استعمال کر رہا ہے۔ تو خدا کے پلان بیسٹ ہوتے ہیں جب ہم پاک روح کی آواز کو سنتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی سیمینار میں، میٹنگ میں اسے ایک خدا کے خادم مل گئے جو پاکستانی تھے، انہوں نے پھر پاکستان کی سچویشن سب کچھ بتایا اور انہیں دعوت دی کہ آپ آئیے گا، ہم آپ کا وہاں سیمینار کرائیں گے۔ یوں ان کی پاکستان میں خدمت بھی شروع ہوئی، اور کئی شہروں میں انہوں نے آ کے پریچ کیا اور بڑے معجزات ہوئے۔ یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدن سے نہیں چلی، کہاں کہاں دیکھیے خدا کام کرتا رہا، وہ روح کی آواز کو سنتی رہی،
डिप्रेस नहीं हुई कि अच्छा ये रिश्ता टूट गया, अब मेरे साथ क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने पाक रूह की आवाज सुनी और वो वहीं गई जहां खुदा ने भेजा। जो लाइफ पार्टनर खुदा ने सिलेक्ट किया था उसके साथ शादी की। उसके बाद खुदा ने कहा कि मैंने तुझे बरकत दे दी है। जब वो आगे बुलाई गई, खुदा ने उसे ब्लेस कर दिया। उसने शक नहीं किया, वो डॉक्टर के पास चली गई, नहीं मैं चेक कराती हूँ, खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया है। तो जब वहां नेगेटिव रिपोर्ट हुई, फिर खुदा ने उनके दिल में डाला नहीं दूसरी जगह जाओ, और खुदा ने बरकत दे दी थी। हालेलुया। खुदा कई दफा हम जिस्मानी तौर पर गलत सोच सकते हैं या नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन जो पाखरू आपके पीछे काम कर रहा होता है वो परफेक्ट काम कर रहा होता है। जो खुदा की प्लानिंग होती है वो परफेक्ट होती है। तो आज भी जो हम सीखने जा रहे हैं, ऐसे इंसान जो कि जिस्मानी तौर पर चलते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में जो रूहानी तौर पर खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। सो हम बाइबल से भी इसका हवाला पढ़ते हैं। मेरे साथ मिलकर खोलें रोमियो की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 5, 6 और 8वीं आयत की मैं तलावत करूंगी। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और इसी तरह उसकी 6ठी आयत में है, और जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसकी 8वीं आयत है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। कई दफा हम लोगों को खुश करने के चक्करों में रहते हैं और हम अपनी बरकत को खो देते हैं। कई दफा हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं कि नहीं मेरा दिल ऐसे कर रहा है करने को, तो हम पाकरू की आवाज को मिस कर जाते हैं। हम उस प्लान को मिस कर जाते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखा होता है। उस बरकत को मिस कर देते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी होती है, क्योंकि हम लोगों को खुश करने के चक्करों में रहते हैं। इसके लिए हम हवाला देखेंगे। जिस्मानी, हमने क्या देखा कि जो जिस्मानी लोग होते हैं वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहते हैं, जिस्मानी ख्यालों में रहते हैं। अगर इसने मुझे बोला है इस तरह से, तो मैं भी इसे जवाब दे दूंगी, मैं भी इसे बताऊंगी कि मैं भी कुछ हूँ। ये जिस्मानी फिक्रों में है। हम दूसरों को फौरन जवाब देते हैं। अगर कोई लड़ाई हो जाती है, किसी से कोई बात हो जाती है, तो फौरन आगे से उसका जवाब देते हैं कि अच्छा इसे पता चले कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी जवाब दे सकती हूँ। रिएक्ट करते हैं फौरन। लेकिन कई दफा खामोश हो जाना अच्छा होता है, खुदा को काम करने देने चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है। लेकिन हम खुद बदला लेने वाले हो जाते हैं, खुद दूसरों का इंसाफ करने वाले बन जाते हैं। आज हम कलाम में देखते हैं कि कई दफा इन्हीं बातों की वजह से, जिस्मानी ख्वाहिशों की वजह से, हम खुदा की बरकत को भी मिस कर देते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें पैदाइश 25 बाब उसकी 27 से 34 आयत की मैं पहले तलावत करूंगी। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और वो लड़के बड़े, और इसौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और यकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था, और इजहाक असौ को प्यार करता था क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका यकूब को प्यार करती थी। और यकूब ने दाल पकाई, और इसौ जंगल से आया और वो बेदम हो रहा था। और इसौ ने यकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब यकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। असौ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब यकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पहलौठे का हक यकूब के हाथ बेच दिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। इससे हमें पता चलता है कि जब हम जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं, जब हम जिस्मानी चीजों की फिक्र में रहते हैं, जब अपनी जिस्मानी भूख प्यास की फिक्र में होते हैं, तो हम उन रूहानी बरकतों को मिस कर देते हैं, खो देते हैं, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी होती। हालेलुया। कैसे चलना है? जिस्म के लिहाज से नहीं चलना, रूह के एतबार से चलना है। इसने अपने जिस्म की फिक्र की, जिस्म के एतबार से चला कि मैं अपनी जिस्म की इस जरूरत को पूरा कर। एसाव की बरकत, एसाव चूंकि पहलौठा था, हालांकि दोनों ट्विंस थे, लेकिन जो पहले पैदा हुआ वो एसाव था। यकूब छोटा था। एसाव से इजहाक बहुत प्यार करता था, बाप बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ छोटे बच्चे को हमेशा ज्यादा प्यार करती है। माँ जो है वो छोटे से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि लिखा है कि वो डेरों में, वो घर में रहने वाला मासूम था, इंसान था, ज्यादा चालाक शियार नहीं था। जबकि एसाव जो था बड़ा क्लेवर था, होशियार था। वो एक जंगली आदमी जैसे होते हैं इस तरह का था, जंगलों में जाता शिकार करता था, और वो इस टाइप का था कि फौरन से रिएक्ट करना,
जैसे कि आपको पता है जो जो लोग जंगलों में रहते हैं उनका एटीट्यूड और तरह का हो जाता है। बेशक ये खुदा ने एक कानून इसराइल में था कि जो पहलौठा है उसकी डबल बरकत होती है, उसको बरकत दी जाती है, डबल हिस्सा जायदाद में, हर चीज में उसको, और बाकी सारे बहन भाइयों पर उसको फिर इख्तियार बाप के बाद दिया जाता है कि तू इनको वॉच करना, इनके लिए अब तू बड़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी बरकत होती थी। और अब यहाँ देखें कि जो सौ है वो बाहर से आया और उसे बहुत भूख लगी हुई थी, और वो अपने खाने पीने के चक्करों में, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के लिए उसने वो बरकत जो कि खुदा ने उसके लिए मुकर्रर कर रखी थी, पहलौठे होने का हक, उसने कहा कि जो कुछ भी पका है, ये जो दाल तू पका रहा है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे दे दे। अब यकूब जीनियस था, अक्लमंद था, वो जानता था कि क्या कदर है इसकी पहलौठे होने की, क्या कीमत है इस बरकत की, वो उस बरकत को पहचानता था। हालेलुया। अब खुदा बरकत उसको देता है जो कदर करता है खुदा की चीजों की, खुदा की बरकत की, जो कदर करता है खुदा के बनाए हुए असूलों की, वो कदर करता था। और वो जानता था कि इस जो दर्जे की या इस बरकत की क्या अहमियत है। उसने फौरन फायदा उठाया और उसने बोला, अगर तू ये लेना चाहता है तो अपने पहलौठे होने का हक मुझे बेच दे। उसने जबरदस्ती नहीं उससे छीना। कई लोग ये कहते हैं कि लोग वो धोखेबाज था, उसने हर एक चीज में खुदा का एक प्लान होता है, और यहाँ भी मेरी बहनों यकूब के लिए खुदा का प्लान था, और उसने समझा उस बरकत को, उसकी कीमत को जाना, और उसने कहा कि अच्छा अगर तू ये कहता है तो फिर मुझे ये हक दे दे। अगर वो अक्लमंद होता तो वो कहता कि नहीं भाई, ये तो बहुत कीमती मेरे लिए चीज है, ये मेरी खुदा ने मेरे लिए ये बरकत ठहराई है, मैं तुझे क्यों इसको बेच दूं। लेकिन उसने वो खाने पीने के लिए अपनी इतनी बड़ी बरकत जो थी वो बेच दी। उसने कहा कि मैं क्या करना है इस बरकत को। उसने ना चीज जाना उस बरकत को, जिस्मानी ख्वाहिश के आगे, भूख प्यास के आगे उसने उस बरकत को ना चीज जाना। और उसने क्या किया, उसने वो कहा कि ठीक है ये तू रख ले बरकत, मुझे तो तू जल्दी से खाने को कुछ दे। और वो बैठा खाने की मेज पर, उसने खाया। और उसके बाद जब बरकत का टाइम आया, तो जैसे भी अब आगे आप सारी स्टोरी को जब पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ी हुई है आप सबने, कि कैसे उसकी माँ ने यकूब की हेल्प की और किस तरह से वो इसहाक से पहलौठे होने की बरकत ले गया यकूब। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं जब असाव आया, पैदाइश 27 चैप्टर 38 वर्स, फिर हम देखते हैं कि फिर एसाव की फीलिंग कैसी थी जब यकूब को बरकत मिल गई। पहले तो वो इसको कुछ बरकत को नहीं समझ रहा था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि इसकी क्या अहमियत है जब वक्त गुजर गया। कई दफा हमारे गलत डिसीजन जब बाद में हम पछताते हैं, कुछ हासिल नहीं आता, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, वो लौट के नहीं आता। इसलिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन, इमोशनल नहीं होना, जस्मानी होकर नहीं सोचना, राइट टाइम पे तहम्मुल के साथ डिसीजन लेना अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो फौरन से डिसीजन लिए जाते हैं वो अक्सर शैतान की तरफ से होते हैं। सो तहम्मुल के साथ फैसले करने हैं, सोचना है। अब इसकी सिचुएशन हम देखते हैं कि इसने जो डिसीजन लिया, इसके ऊपर बाद में उसका क्या रिएक्शन था, क्या उसने किया। 27 बाप 38 आयत में लिखा है, तब असाव ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ए मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे, ए मेरे बाप, मुझे भी। और असाव चिल्ला चिल्ला कर रोया। हालेलुया। अब क्या फायदा है उसके रोने का, जब उसने खुद से अपनी वो बरकत बेच दी अपने भाई के हाथ। अब वो रो रो के बाप से कह रहा है कि ए बाप, ए बाप, क्या तेरे पास सिर्फ एक ही बरकत थी जो तूने मेरे भाई को दे दी, कोई और बरकत मेरे लिए नहीं है? वो रोया और चिल्लाया अपनी बरकत के लिए, अपने गलत डिसीजन के लिए। तो क्या कुछ हुआ? बरकत उसके बाप ने, इसहाक ने उसे भी दी, लेकिन जो बेस्ट बरकत थी वो किसको मिल गई? याकूब को, अपनी अक्लमंदी से। हालेलुया। सो खुदा हमें मौका बख्शता है कि हम कलाम में से सीखें। ये जो स्टोरीज हैं, ये महज स्टोरीज नहीं कि हम इनको पढ़ के इंजॉय करें या हम कहें आज ये मेरी और आपके लिए है। हम इसको अपनी जिंदगी में लेके देखें कि मैं इस तरह की तो नहीं हूँ, मैं तो फौरन से डिसीजन ही ले लेती बगैर सोचे समझे। हमें अपनी जिंदगी पर कलाम के इन हिस्सों को पढ़ते हुए गौर करना है। आज क्या मैं तो क्विक रिएक्शन नहीं करती, बगैर सोचे समझे अगले को जवाब देना, और फिर घर में मुश्किल पैदा हो जानी और लड़ाई झगड़े पैदा हो जाने। हमने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, रूह में चलते हुए फैसले लेने हैं। जिस्म तो बहुत कुछ कहता है, ये भी कर ले, ये भी इससे छीन ले, ये भी ले ले, इसकी चुगली कर, इसकी टांग खींच ले, और लेकिन हमें सही फैसले लेने की जरूरत है। इसको खुश कर ले, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। हम लोगों को खुश करने के चक्करों में रहते हैं और कई दफा अपनी बरकतों को मिस कर देते हैं। अभी हम एक और हवाला देखेंगे। मेरी बहन सिस्टर रुखसाना, खुदा की खादमा, हमारे साथ हैं। जी सिस्टर जी, गिनती की किताब उसका 12 बाब 1 से 10 आयत तक हम तिलावत करेंगे।
ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا، تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے ممنوع میں نہیں بلکہ روبرو اور سیرات طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوٹ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ سو یہاں بھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں جسمانی سوچ جو کہ خدا کی طرف سے نہیں تھی۔ حسد ایک جسمانی جذبہ ہے، ایک فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ روح نہیں ہمیں حسد کرنا سکھاتا، وہ تو پیار ہے، روح تو جو ہے وہ پیار سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے۔ یہ ایک فیلنگ ہے جو جسمانی ہے، حسد کرنا۔ یہاں حسد کی ہم اسپرٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ حسد کی اسپرٹ نے کام کیا کس کے اندر؟ ہارون اور مریم کے درمیان۔ کئی دفعہ حسد ہمارے اندر آ جاتا ہے، اچھا یہ خدا کا خادم ہے تو کیا میں کلام نہیں سیکھ سکتی؟ یہ کلام دے رہی ہے خادمہ تو کیا میں کلام نہیں دے سکتی؟ ہم یہ نہیں جانتے کہ جس کو خدا نے خدمت دی ہے اس نے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اسے خدمت دی ہے۔ جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے خدا اتنا مسا آپ کے اندر ڈالتا ہے، ویسی ہی خدمت آپ کو دیتا ہے جیسی آپ کی کیپیسٹی ہے۔ اگر ہم کاپی کیٹ بنتے ہیں کہ یہ خدا کی خادمہ ہے تو میں بھی کلام دے سکتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کئی دفعہ آپ کے کلام دینے سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے، کیونکہ آپ نے خود سے وہ خدمت چنی ہے، خدا نے نہیں چنا۔ جب تک خدا کسی کو نہیں چنتا خدا اس سے کام نہیں لیتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو استعمال کرتے پھرتے ہیں تو لوگ برکت نہیں پائیں گے۔ کاپی تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ویسا مسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بیسٹ سپیچ تو دے سکتے ہیں لیکن لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا اس کلام کا، وہ صرف ایک سپیچ ہوگی، ایک تقریر ہوگی۔ لیکن جس کو خدا نے چنا ہے جب وہ یہ خدمت کرے گا تو لوگ برکت پائیں گے، گواہیاں پیدا ہوں گی، خدا کام کرے گا، آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ہاں کہ اس کی خدمت میں اگر خدا نے اسے واقعی چنا ہے، جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو معجزات رونما ہوتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے، ہمارے اندر ایک تسلی آتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں چوٹ لگتی ہے اور ہم بدل جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بدل گیا، آج کا کلام تو میرے لیے تھا۔ ہالےلویا۔ سو یہ خدا کا خادم جسے چنا ہے، اس نے کہا میں اس سے موموں میں باتیں نہیں کرتا۔ موم میں کیا ہوتے ہیں؟ جن کو حل کیا جاتا ہے پہیلیوں میں باتیں کرنا، ایزی ورڈ میں۔ تو وہ کہتا ہے میں اس سے موموں میں باتیں، پہیلیوں میں باتیں نہیں کرتا، میں اس سے روبرو باتیں کرتا ہوں، جیسے دوست آپس میں بیٹھ کے دو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے اس کی چگلی کی کیونکہ اس نے ایک کوشی عورت سے شادی کر لی تھی۔ اگر کوئی غلطی کسی خادم سے ہوتی بھی ہے ہمیں لیٹ اٹ گو کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خدا آپ اس کا انصاف کرتا ہے، وہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی خادمہ غلطی خدا کی کرتی ہے تو اس پہ چھوڑ دیں، وہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، وہ خدا اس کو دیکھے گا خود ہی، ٹھیک ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں تو ہم گناہگار ٹھہرتے ہیں، ہم جسمانی طور پہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں بھی جسمانی ریئیکشن کو ہم دیکھتے ہیں۔
रूह का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हम समझते हैं कि हम चुगलियां कर रहे हैं, कोई नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। खुदा हर वक्त हमें देखता है और हमारी हर एक हरकत पर उसकी नजर है, वो कीनली हमें ऑब्जर्व करता है। और फिर जब हम बड़ी बड़ी बरकतें उससे मांगते हैं तो वो नहीं देता, क्योंकि हमारी जब तक सफाई नहीं होगी, हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, तो हम कैसे उन बड़ी बरकतों के हकदार हो सकते हैं? हम कैसे पुलपट पे चढ़ के स्पीच कर सकते हैं, या डिलीवरेंस के लिए दुआ कर सकते हैं, या खुदा के कलाम को अच्छे से वहां से दे सकते हैं? ओनली स्पीच कर सकते हैं जब तक पाक रूह हमारे अंदर नहीं है, जब तक हम रूह के चलाए नहीं चलते। अब यहाँ देखिए, उन्होंने जैसे ही बात की, जैसे ही उन्होंने गलत बात की मूसा के बारे में, खुदा ने बुला लिया, आ जाओ मेरे पास। खैमा में उसको उन्हें बुला लिया, तीनों को, मूसा को भी साथ बुला लिया। और क्या उनको सजा मिली? बात किसने की थी? बात की थी मरियम ने, सिर्फ हारून ने सुना था। सो जिसने मुंह से निकाला, जिसने गलत वर्ड खुदा के कादम के लिए बोले, खुदा ने उसे कोड़ी कर दिया और उन्हें जताया इस बात को कि इसको मैंने चुना है और ये मेरा दोस्त है। तो जिनको खुदा चुन लेता है, हमें अपने मुंह को उनके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करना। जस्मानी तौर पर हमें जो कुछ भी सामने सिचुएशन नजर आ रही है, हमें अपनी कई दफा नेगेटिव सोचे हमारे दिल में डालते हैं और हम कादमों के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि खुदा ने फौरन से रिएक्ट किया था और मरियम को फौरन से सजा दी थी कि उसकी सोच गलत थी। उसने गलत सोचा था और गलत बोला था खुदा के कादम के लिए, और खुदा ने फौरन रिएक्ट किया और खुदा ने उन्हें सजा दी। हारून इसलिए बच गया कि हारून ने वो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन बोलना ज्यादा अहम है। उसने मुंह से वो वर्ड नेगेटिव निकाले, जिसकी वजह से उसे सजा मिली और उसे कोड़ हो गया, वो कोड़ी हो गई। गो के बाद में उनके भाई ने, मूसा ने शिफायत भी की, खुदा के पास जाकर उनके लिए माफी भी मांगी कि उनको माफ कर दे, और वो ठीक हो गई बाद में। लेकिन जरूरी है कि जब हम बोलते हैं, हम सोच समझ के बोलें। हम खुदा के खादमों के लिए फौरन से रिएक्ट ना कर दें, या किसी को सच्चा या किसी को झूठा ना। अगर आपके अंदर स्पिरिट है जांचने की, परखने की, तो चुप करके अलग हो जाएं, अलग हो जाएं उस जगह से या उस खादम से जिससे आपको बरकत नहीं मिल रही। वो भी आप उसी वक्त जज कर सकेंगे जब आपके अंदर परखने की रूह है, जब आपके अंदर ऐसी स्पिरिट मौजूद है जिससे आप देख सकते हैं कि नहीं, ये खुदा की जो तालीम दे रहा है ये कलाम के मुताबिक नहीं, या इससे तो मुझे ठोकर लग रही है, मुझे बरकत नहीं मिल रही बल्कि मुझे ठोकर लग रही है। तो हम अलग हो जाएं, बजाय कि उनके लिए बातें करते फिरें या दूसरों को कहते फिरें, आप अलग हो जाएं। जहां से आपको बरकत मिलती है, आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, ये नहीं वक्ती तौर पे खुशी तो होगी कलाम सुन के, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ आपकी जिंदगी पे। ऐसा कलाम जो आपको बदल के रख दे, ऐसे खादमों के साथ जुड़े रहें और कभी उनसे अलग ना हो। हालेलुया। और हमने ये अभी देखा है कि जब हम खुदा के कादमों के लिए अपने जिस्मानी सोच के मुताबिक चलते हैं और रूहानी जो सोच है उसको छोड़कर जिस्मानी सोच के मुताबिक हम बोल देते हैं फौरन से, तो हमने देखा कि कैसा मरियम ने सजा पाई। सो आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी कहता है कि हम भी गौर करें अपनी जिंदगियों पर कि हमें कैसे बनना है। हमें ऐसे इंसान बनना है जो जिस्मानी तौर पर रिएक्ट करते हैं, या ऐसे इंसान बनना है जो कि रूहानी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि पाक रूह की आवाज को सुन रहे हैं, जो अपने डिसीजन खुदा के हाथों में दे देते हैं कि खुदा तू फैसला कर, मेरी अकल नाकिस है, अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे गाइड करके मुझे कैसा फैसला लेना है, मुझे कैसे बोलना है, मुझे किसी के साथ किस तरह चलना है। हालेलुया। कई दफा चर्च में मीटिंग बड़ी अहम होती है, हम रिश्तेदारों को खुश करने चले जाते हैं कि नाराज ना हो जाए, उनकी शादी है, उन्होंने बुला रखा है, उनकी बर्थडे है, वो नाराज ना हो जाए, कोई नहीं चर्च अगले संडे। आपको नहीं पता कि उस दिन आप खुदा ने कौन सी बरकत आपके लिए रखी है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे घर में आएगा तो मैंने इसको ये बरकत देनी है। हम सिचुएशन के मुताबिक चाहते हैं कि खुदा भी हमारी सिचुएशन को देख के खुदा बरकतें रख ले, रोक ले कि कोई बात नहीं, अगर आज हम अवेलेबल नहीं तो खुदा कल वो बरकत हमें दे दे। हमें खुदा के मुताबिक चलना है, ना कि खुदा ने हमारे मुताबिक चलना है। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। आज भी वक्त है कि हम गौर करें कि खुदा के ताबे रहते हुए हम जिंदगी गुजार रहे हैं या हम अपनी ख्वाहिशों के ताबे रहते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको सबको बरकत दे। आखिरी आयत एक दफा मैं फिर बोलना चाहूंगी, रोमियो 8 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। सो हमें खुदा को खुश करना है, हमें जिस्मानी नहीं रूहानी बनना है, रूहानी फैसले लेने हैं, खुदा से हिकमत को मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और फजल बख्शे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। आमीन।